Hi guys, good morning. This is Salman Khan once again in a new lecture, and that lecture is that how to talk in past. And welcome into the Infinitives Training Institute. And today I'm going to tell you that how you can talk in past. Let me tell you about the past and the value and the importance of past. You can write your all answers of your questions of your lesson in past. If just you once learn the past, अगर एक दफा आपको past आ जाता है, so you can write your answer in the past lecture. Because let me explain you in this way. When you read out a lesson, जब आप एक lesson पढ़ते हैं and then you go to write the answer of that lesson, और जब उनके answer लिखते हैं तो आपको past में लिखना पड़ता है. Just remember that, because let me give you an example of the first year lesson number 1, which is button. If you just read out the button, and if you look down at the questions, who was Norma, what happened with Stewart, why he came, so you will just check out that all the question it comes in the form of past sense, and you will have to even write the answer in past. So it is very important for you guys in this sense also. But today we are going to talk only that how to talk in past. So this is a sketch of past. That's how to talk in past. I have mentioned over here that we can talk in past simple tense. What does the mean of past simple tense? If you remember my lecture, which was about the verb, so I have told you that time that we have one tense which is past simple tense, and we use the second form in this tense. So remember that lecture, and today also I'm going to tell you second form. You can complete or all past in second form. Remember that second and third form, that is also used for the past. So if you want to talk in the past, okay, so you can use the second form of the verb, like yesterday I went, I did, I woke up, okay, then I reached. So all the second form. And remember one thing over here, there is no any helping verb between the subject and the second form. Like you can't you don't need to put any helping verb over here. So you just, if you remember our thirsty crow or a greedy dog, it was a story in our early classes, like in the grade 6 or 4 or something like that. There was a crow, he was very thirsty, and he went, he searched, and he saw. So you will see that all the form of verb I'm using that the second form. So you can complete your second form with your past with the second form. Now let me explain you the next one. You are almost using past continuous tense. As I told you in the early lecture about the verb, that the sense of continuous, that is not complete. What does it mean? Okay, the sense of past continuous is not complete. It means that if I just talk to you in the past continuous tense, something like, let me give you some example of sentences. Like yesterday I was playing, कल मैं खेल रहा था, तो क्या हुआ? मैं जा रहा था, I was going. So it means that you can only start a sentence. It can be a starting point. It can be a starting point, that what I am doing, okay, and what I was doing, where I was going, and what happened then. If you remember that in our early classes, our teachers almost they wrote these kind of sentences to it. वो खेल रहे थे, वो जा रहे थे, आसमान पर तारे चमक रहे थे. It's okay. These are relevant with the past continuous tense. But all, if you just look these sentences, you will see that these sentences are incompleted. We come for the completion of these kind of things, we will have to move over here. Yesterday when I was going, I saw a lot of people on the road. See what I have told? Yesterday when I was going, यानी कल जब मैं जा रहा था, सबके कान खड़े हो जाएंगे कि क्या हो गया. When I was going, फिर मैं कहूंगा I saw a lot of people on the road. मैंने बहुत से लोग देखे जो रोड पर थे. They were fighting with each other. वो एक दूसरे से लड़ रहे थे. So now my sentence is completed. So you can just only start. It can be a starting point for starting about the past, but it never gives you a complete sense. So just remember about that. Then I have present perfect tense. Tense present ka, but the sense is almost, it is in past. If you remember that,
I have still remembered that when I was in my early classes and when I was a student in Pakistani schools, तो हमें कहा जाता था कि जी हाल ही में जो काम अभी अभी खत्म हुआ हो. Let me explain you that if I just complete my lecture and I tell to you guys, okay guys, I have finished. मैंने काम कर लिया है या मैं काम कर चुका हूं. ये वो टेंस है जिसमें आप उर्दू में आखिर में चुका चुकी करते थे, मैं कर चुका हूं. बट दिस इज अ रॉन्ग सेंस कि जो हाल ही में काम खत्म हुआ है, वी आर यूजिंग फॉर दैट. नो, दिस इज नॉट समथिंग लाइक दैट. इन इंग्लिश सेंस, इंग्लिश के सेंस में ऐसा कुछ नहीं होता. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस. एक एग्जांपल मैं आपको देखता हूं और लेट मी आस्क यू, अगर मैं आपसे पूछूं कि ओके गाइस, आपने टाइटैनिक मूवी देखी है, तो आप मुझे क्या कहेंगे कि ओके सर, वो तो मैं देख चुका हूं. इसका मतलब ये है यस सर, आई हैव सीन इट, मैंने वो देखी है या मैं देख चुका हूं. इट डजंट मीन दैट कि अभी अभी आप देख कर आए. समटाइम्स इफ इवन आई एम टॉकिंग उर्दू और मैं कहूं कि यार वो तो मैंने देखी है और मैं देख चुका हूं, कब, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो मैंने अभी अभी देखी है, द वर्क इज फिनिश्ड. नो, द सेंस इज नॉट जस्ट लाइक दैट. टेंस माइट बी tells us something like that, क्योंकि हम प्रेजेंट की वजह से कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो इफ आई आस्क यू कि व्हाई वी हैव दिस टेंस, अगर मैं पूछूं कि प्रेजेंट का ये परफेक्ट टेंस जो है बेटा, ये क्यों है पास्ट में, इसका सेंस पास्ट में क्यों है, ये तो प्रेजेंट का टेंस है, तो बच्चे आंसर देते हैं कि सर ये परफेक्ट है, इसमें कोई काम हो चुका है. दिस इज आल्सो अ लॉजिकल गुड आंसर. लेकिन इसका और एक आंसर ये है कि वी आर यूजिंग थर्ड फॉर्म इन दिस. जहां भी सेकंड और थर्ड फॉर्म आएगी, सो द सेंस विल डेफिनेटली गो टू द पास्ट. यहां पे थर्ड फॉर्म आती है और थर्ड फॉर्म से पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट टेंस में आपने हैव, हैज, हैड और विल हैव लगाना है, और वो थर्ड फॉर्म, द थर्ड एंड सेकंड फॉर्म शोज दैट द सेंस इज गोइंग टुवर्ड द पास्ट. सो एक तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नाउ लेट मी टेल यू समथिंग एल्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहां तक तो आपको आता था, You're quite right in these things. But now, अब यहां तक आप पाकिस्तान में भी टीचर से पढ़ते हैं और वो भी आपको मुझसे शायद अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि what is the difference between this and this. ये डिफरेंस क्या है? When we talk to the native, जब हम नेटिव से बात करते हैं, like the peoples who are living in America or who are living in England or Australia, they never use the second form. Sometimes even they don't know the second form. They almost use the third form. I still remember when I went like abroad and I have talked to someone. So one of my friend, he came to me. He was from America and he told me, "Amma, where you been yesterday?" एक जहां काम पे जाता था, मैंने छुट्टी की थी, उसने मुझसे क्या पूछा, "Amma, where you been yesterday?" पहले तो मुझे you been yesterday नहीं समझ आती थी, मुझे सिर्फ yesterday से समझ आया कि he is talking something about my past, कि तुम कल कहाँ थे, because I have got an off day, मैंने छुट्टी की थी, तो मैंने कहा सर yesterday I went to hospital. What you want? No sir, I don't want. I want to. Oh, you mean you gone to hospital? Why he said you gone to hospital? और went का उसे क्यों नहीं पता था? जब मैंने उसे कहा कि सर yesterday I was sick, उसने कहा है were you sick? You're not a Muslim? तुम सिख हो, मुसलमान नहीं हो? I still परेशान हो गए कि यार सिख, मेरा बच्चा जानता है कि सिख के मीनिंग जो है वो बीमार होने के हैं, बट व्हाई दिस मैन इज टॉकिंग अबाउट दिस अदर सेंस, क्योंकि उसको सिख का मतलब नहीं था. वो कहता है आई वाज नॉट ओके आई हैड हेडेक. हम भी कहते हैं यार कि मेरे सर में दर्द था, मुझे बुखार था एंड समथिंग लाइक दैट. वो तो एक और सेंस हो जाता है, बट नेटिव आर मोस्टली यूज दिस सेंस. जैसे मैं कहता हूं, अब मुझे एक एग्जांपल, अब मैं आपको ये बताता हूं कि हम पाकिस्तान में क्यों नहीं बोलते, क्योंकि पाकिस्तान में ये उर्दू में फिट नहीं बैठता. We are thinking, when we are talking in Pakistan, we first think in Urdu, then we try to translate, then we deliver the words. ये जो सबसे एक गलत सेंस है कि हम उर्दू में सोचते हैं, ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं और फिर बोलते हैं. यही एक चीज है जो हमें नहीं बोलने देती. Now let me explain you once again. अगर मैं कहता हूं कि yesterday when I was going to home, I saw a lot of people on the road. They were fighting with each other. इसका मतलब वो कल जब मैं घर जा रहा था, मैंने बहुत से लोग देखे जो लड़ रहे थे. लेकिन अगर मैं ये कहूं कि yesterday when I was going to school या when I was going to home, I have seen a lot of people. They were quarreling with each other. I have seen. तो इसका मतलब होता है कल जब मैं जा रहा था, मैं देख चुका हूं. वो देख चुका हूं यहां पे सेंस में परफेक्ट नहीं आता. एंड वंस अगेन, एक आज इसी लेक्चर में मैं आपकी एक और चीज खत्म कर दूं. देखो बेटा, जो लोग उर्दू इंग्लिश को इस तरह से बोलते हैं, आखिर में ता है, ती है, चुका, चुकी है,
वो थैया करते रह जाएंगे और इंग्लिश कोई और चुप के ले जाएगा। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं, इंग्लिश के साथ उर्दू का कोई काम नहीं है। यू कांट ट्रांसलेट। आई वॉज इन क्लास 7th or 6th समथिंग लाइक दैट, वन ऑफ माई टीचर ही वॉज टीचिंग अस, वो हमें पढ़ा रहे थे, उसने कहा जिसके आखिर में ता है, ती है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। एंड आई जस्ट थॉट, मैंने थोड़ा सा सोचा, क्योंकि बिकॉज आई बिलोंग टू पठान फैमिली, तो मैंने सोचा कि यार इसके पश्तो के आखिर में क्या आता है। तो जब मैंने पश्तो में देखा तो ऐसे वर्ड्स नहीं आ रहे थे जो ताती वाले थे, उर्दू के सारे सेंटेंस। तो मैंने क्वेश्चन हाथ उठाया, मैंने कहा सर जी उसके आखिर पश्तो के आखिर में क्या होगा। उन्होंने मुझे डांटा, बैठ जाओ मैं पश्तो पढ़ाने आया हूं। लेकिन आई गॉट वन थिंग दैट्स कि व्हेन यू आर मर्ज वन लैंग्वेज टू द अदर लैंग्वेज, जब आप एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज के अंदर मर्ज करते हैं, वो कभी भी सही नहीं होती। आपको मैं इसकी एग्जांपल समझाता हूं। देखिए ये मैंने क्या कहा, ये मैंने कहा कि शी गोज टू स्कूल, इसकी उर्दू क्या होती है ये आप खूब जानते हैं कि वो स्कूल जाती है। फिर मैंने कहा ही गोज टू स्कूल, अब इसकी उर्दू क्या होती है, वो स्कूल जाता है। अब देखिए कहां से पता चलता है कि सेंटेंस जो है वो मुज़क्कर का या मुअन्नस है। ही हमारे यहां पे पता चलता है, इंग्लिश में पता चलता है ही और शी से, यानी नाउन से पता चलता है। किससे पता चलता है बेटा, ये जरा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नाउन से पता चलता है। आपके नाउन से पता चलता है कि सेंटेंस जो है। लेकिन उर्दू में किससे पता चलता है, जाती और जाता, उर्दू में वर्ब से पता चलता है। जब ये सेंस होता है, जबकि उर्दू पश्तो में दोनों एक ही तरफ है। पश्तो में होता है आगाज कुलतजी और आगाज कुलतजी, उस पश्तो के उसमें दोनों में ये जो जाने के लिए वर्ब है वो एक जैसा है, वो उसके अंदर जाता जाती चेंज नहीं होता, बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ पश्तो एंड पर्शियन एंड अरबिक दैट इज सिमिलर टू इंग्लिश। That is the reason that the Pathan guys and the Persians guys, they can speak very well English, but when they try to speak Urdu, जब वो उर्दू बोलते हैं तो वो उनसे ये नहीं बोली जाती, because of that कि यहाँ पे he she इसके मुताबिक नहीं बनता, वो उसके सब्जेक्ट के मुताबिक बनता है। That is another lecture। लेकिन ये था कि प्रेजेंट का जो परफेक्ट टेंस है that is used in past for speaking too much, instead of that कि वो यूज हो किसमें कि हम पास्ट का सिंपल डी, बिकॉज इट्स लुक डिसेंट, ये अच्छा लगता है। पास्ट का परफेक्ट टेंस है नंबर 4 पे, और पास्ट का जो परफेक्ट टेंस है उसके बारे में मैं आपको जरा बता दूं कि ये यूज तो होता है लेकिन बहुत कम, बिकॉज इट नीड रीजन, इसको रीजन की जरूरत है। व्हाट काइंड ऑफ रीजन आप कहेंगे? मैं कभी नहीं कहूंगा कि जनाब, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि बेटा आपने मूवी देखी है टाइटैनिक, तो आप मुझे कहें सर वो तो मैंने देखी है या मैं देख चुका हूं। ये नहीं कहेंगे वो मैं देख चुका था। जब आप देख चुका था बोलेंगे तो उसके लिए आपको रीजन देने पड़ेंगे, सर वो तो जब नहीं आई थी उसी वक्त मैं देख चुका था, ये रीजन है। सो विद रीजन, सो समटाइम व्हेन वी आर टॉकिंग हमें रीजन देने की जरूरत नहीं होती। सो ये टेंस तो सबसे कम यूज होता है। आप अक्सर अगर स्टोरी वगैरह पढ़े तो एंड पे जब रिजल्ट निकलता है तो उसमें आपको कहते हैं, मैं इसके नीचे आपको एक लिंक लगाऊंगा विच इज अबाउट द पास्ट। वो लिंक में एक स्टोरी है, उस स्टोरी में आप देखेंगे कि प्रेजेंट के सिंपल टेंस ये सारे टेंसेस यूज होंगे, और आखिर में वो कहेगा कि ही हैड गॉट द पनिशमेंट, क्योंकि हैड गॉड इसलिए कहेगा कि उसको वो रीजन आ गया सामने और वो आप उसमें से समझ जाएंगे। नाउ द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दैट कि हमारे स्टूडेंट्स को पैसिव का नहीं पता। व्हाई दे डोंट नो अबाउट द पैसिव? पैसिव में बात भी होती है। पैसिव के बारे में मैं आपको एक और लेक्चर बताऊंगा। आज मैं आपको एक कोटेशंस बताता हूं। कायदे आज़म ने कभी कहा था कि ओ माय नेशंस, those days were gone, now you are in a new country, now you are in a new homeland। उसने क्यों कहा था those days were gone? वो दिन गए। वो कह सकता था कि those days went, वो भी हो गया। those days have gone, those days have been gone, लेकिन उसने कहा those days were gone, because let me tell you and let me explain you कि passive जो है that is very important। और ये क्योंकि पैसिव में क्या होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट। हमारे यहां सब्जेक्ट की बात नहीं होती, ऑब्जेक्ट की। तो जब बेटा ऑब्जेक्ट की बात होती है, मसलन हम ये बात नहीं करते कि पढ़ कौन रहा है, पढ़ाई की बात होती है। हम ये बात नहीं कर रहे कि प्यार कौन कर रहा है, मोहब्बत कौन कर रहा है, मोहब्बत की लव की बात होती है। हम ये बात नहीं करते कि जनाब शोर कौन कर रहा है, बल्कि शोर की बात होती है। हम ये नहीं बात करते कि पढ़ा कौन,
रहा है, कौन की बात नहीं होती, बल्कि सब्जेक्ट्स की बात होती है, हमारे इमोशंस की बात होती है, हमारे डिजायर्स की बात होती है। वो नाउन जो इमोशन और डिजायर्स पे होते हैं, बिकॉज इट्स लैंग्वेज ऑफ पोएट्री। अगर आप पोएट्री उठा के देख ले फर्स्ट और सेकंड ईयर के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, सो यू विल फाइंड आउट दैट, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जब वो मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा, फर्स्ट और सेकंड ईयर के लेक्चर शुरू करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सी दिस इज पैसिव एंड व्हाई इट इज इन पैसिव, कि बिकॉज आप गाने सुने तो पैसिव्स की लैंग्वेज आपको बहुत ज्यादा नजर आएगी। आई हैव अ लेक्चर ऑन पैसिव जिसमें मैंने बताया है कि हाउ टू टॉक इन पैसिव, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू टॉक इन पैसिव। लाइक लेट मी एक्सप्लेन यू लास्ट सेंटेंस विद दिस। जैसे कि मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, बाहर से कोई आता है कि देखो यार ये अंदर आवाज किसकी आ रही है, तो एक पियोन आता है या एक असिस्टेंट आता है और वो देखता है कि मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, वो वापस जाके प्रिंसिपल को या जिसने कंप्लेन की थी कि आवाज क्यों आ रही, दो बातें बता सकते हैं कि सर सलमान पढ़ा रहे हैं, सर सलमान इज टीचिंग ओवर देयर, या वह वहां पे एक और बात कर सकते हैं कि सर वहां क्लास हो रही है। ये जो वहां क्लास हो रही है इसकी इंग्लिश हमें नहीं आती, चाय पी जा रही है, क्लास हो रही है, कुछ गपियां लगाई जा रही है और जनाब वाओ खाने खाए जा रहे हैं, वो भी अकेले अकेले। सो दिस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वी आर ऑलमोस्ट यूजिंग दैट इन पैसिव। उसके लिए आपको मेरे पैसिव का लेक्चर देखना पड़ेगा। सो फॉर टुडे दैट इज ऑल। ओके, आई थिंक यू विल गेट इट, आपको ये समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दीज थिंग्स तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। वी विल एट द एंड जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाती है, बट दैट इज लेटर ऑन, उसके बाद में, कि इसको ये तो मैंने आपको समझा दिया, बट इफ यू वांट टू टॉक इन दिस सेंसेस, सो हाउ यू कैन टॉक एंड हाउ यू कैन यूज ऑल दीज सेंसेस, सो वो फिर हम किसी और लेक्चर में करेंगे। सो उस वक्त तक के लिए आप मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। सी यू सून इंशाल्लाह विद अ न्यू लेक्चर, एंड और नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 विल बी कि हाउ टू टॉक इन present. Thank you guys.